everyone, welcome back to my channel. Today the topic I am going to cover about for each loop. In last video we had discussion about the looping concept, and I have covered while loop, do while loop, and for loop. So today we are going to discuss about the new loop, that is for each loop. Okay, and basically before that I will write one example for nested for loop, so you can see that example. And after completing the core Java, we will be covering about the all the some important program like 50 or 60 program I will let you know, and we'll try to complete those after completing the core Java concept. Okay, so here first we will be discussing about the for each loop today, and then we will move into the Java oops concept. So for loop, actually the Java for loop is used to iterate a part of the program several times, like we do while and while loop, same as we are using the for loop. So if the number of iteration is fixed, then it's recommended to use for loop. Okay, so here I'm going to write one program for you. So for loop I have completed in the last session as well, but here today I'm trying to give you one example for loop for that nested loop concept. Okay, suppose I want to print one pattern. So here in this package only I'm going to write one more new class. Here I will create a class, and here nested loop concept I'm using. So I will be giving the one class name is nested loop. I will be clicking the public static void main method. By default I'm using this main method. So here I can, if you are needed, then you can write this, otherwise you can directly create a variable I and j. I have using these two variable, and I'm writing the concept I is equals to 0, I less than is equals to 5, and I plus plus. Okay, I have given one loop here, and the next for loop I have written the same. J is equals to, suppose I have written I, okay, and j less than is equals to, I have written 5, or you can write j greater than 0. Okay, greater than or equals to 0. I will let you know what is that. I will explain also. First let me return system dot out dot println. I will remove this ln because I want the concept to print like I have written I, and after this loop I have written one line system dot out dot println. Okay, and now if I will compile, first we'll see what will be the output, then we will explain you Java application. So, oh my god, why it is giving the infinite? Because I have written this decrease, not increase. Written the increase. If I am using the greater than condition, you have to write the decrease condition here, because the condition will be true every time. Okay, it will plus, and again concept will be like 0 plus 1, so it will be 1 like that. So this is the 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. This is the output which is printing. Okay, now instead of I, if I'm going to write the star, so what will happen? So it will be very sorted for you, and you can see the star is going to print, and that question can be asked in your exam. Print this pattern. Okay, so before doing this, okay, first I will be writing here I only, or you can write the j as well. Okay, if I will be writing the j, so the concept which you are going to print, it will be like this: 0 1 0 2 1 0 3 2 1 0, like this. Okay, so again I'm writing the j, and let's understand why it is printing the value in this case. Okay, I equals to 0, I less than equals to 5. It will check the condition here. I value is 0, and definitely 0 is less than 5, so this loop is true. So once this loop is true, it will go inside the another loop. If this condition will not true, then it will not inside that particular loop. So j is equal to 0, because I have written j is equals to I. Okay, what I have written here, j is equals to I hope आपको ये दिखाई दे रहा होगा. ओके, सो ये j इज इक्वल्स टू i है यहाँ पे. ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है 0, j लेस देन ग्रेटर देन 0. तो पहली बार 0 है, लेस ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा और i की वैल्यू प्रिंट करेगा. i की वैल्यू मेरे पास कितना है, 0, तो डेफिनेटली उसने 0 प्रिंट कर दिया. प्रिंट करेगा और वापस आएगा, तो प्रिंट एरर लिखा है, मतलब नेक्स्ट लाइन में कर्सर आपका मूव हो जाएगा. अभी i की वैल्यू कितना हो गया, 1. 1 लेस देन है आपका 5 से, क्योंकि प्लस 1 हो गया ना, तो 1 हो जाएगा. 0 प्लस 1 1. सो j की वैल्यू कितनी होगी, 1. तो इट विल चेक 1 greater than equals to 0.
यस इट इज इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन बट नॉट इक्वल। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 प्रिंट करेगा। अगेन ये लूप में जाएगा, यहाँ पे जे माइनस वन मतलब कितना हो गया, 1 माइनस वन। अब की बार यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आपको पता है कि एक ही बार वैल्यू कैलकुलेट होती है। अभी आपने यहाँ पे माइनस किया है तो मतलब इसका क्या मतलब होता है, जे माइनस माइनस का मतलब क्या होता है आपका, जे माइनस माइनस का मतलब होता है आपका जे इज इक्वल्स टू जे माइनस वन। तो आप अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, सो जे आपका कितना है, यहाँ पे 1 है, राइट। 1 माइनस वन कितना हो गया, जे आपका 0 हो गया। तो 0 ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, मतलब पहले दूसरी बार कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या प्रिंट करेगा, आई, आई कितना था आपका 1, तो 2 बार 1 प्रिंट करा, फिर बाहर आ जाएगा, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो जे की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 2, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यस है, तो प्रिंट करेगा एक बार 2। फिर दूसरी बार में जब जाएगा, तो दूसरी बार में कैसे प्रिंट करेगा, जे इज इक्वल्स टू, जे कितना अभी आपका 2 माइनस वन, तो कितना हो गया, जे इज इक्वल्स टू 1, राइट। एक बार तो 2 के लिए प्रिंट हो गया, एक बार 1 के लिए प्रिंट हो गया, और एक बार आपका किसके लिए प्रिंट हो जाएगा, 0 के लिए। फिर दूसरी बार में आपका जे इज इक्वल्स टू जे माइनस वन, मतलब अगर आप चेक करेंगे तो जे इज इक्वल्स टू 1 माइनस वन कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो लूप 3 बार प्रिंट करेगा, 3 बार आपने किसको प्रिंट करा है, आई को। तो इसी तरह अंटिल इट विल नॉट मेट योर एंड कंडीशन विच यू हैव रिटन एट 5, सो इट लूप आपका चलता जाएगा, इसलिए ये आउटपुट आएगा आपका। अभी अगर अब मैं इस चीज को यहाँ पे चेंज कर दूं, मैंने इसकी वैल्यू कितना कर दिया, 1 कर दिया, और ये जो कंडीशन है मेरी, ये जो कंडीशन है मैंने आपकी, ये इक्वल हटा के आई के इक्वल कर दिया, और यहाँ पे मेरा हर बार मैंने इंक्रीमेंट करा। तो इससे सिंपल है, आपको आउटपुट किस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, पहली बार में आई की वैल्यू कितनी है, 0, ओके, कंडीशन ट्रू है, आपके लूप के अंदर जाएगा, जे इज इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो पहली बार क्या होगा, 1 आपका ना तो छोटा है, इससे ना ही इक्वल है आपका 0 से, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, तो लेट्स सी द आउटपुट। सो इसी तरह से आपका आउटपुट चलता जाएगा। तो पहली बार में कुछ नहीं प्रिंट करा उसने, यहाँ पे दूसरी बार में 1 प्रिंट करेगा, बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हम यहाँ इसको भी 1 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो अब की बार ये गैप नहीं आएगा, आप चेक करेंगे यहाँ पे प्रिंट हो गया। और अगर आप जे को प्रिंट करा जाएंगे तो उस केस में जे को प्रिंट कराएंगे तो 1 2 1 2 3 इस तरह से प्रिंट होगा, बिकॉज पहली बार 1, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये पैटर्न है, आपको ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और आपको ट्राइंगल का, इन सब का, डायमंड पैटर्न, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बाद में। अभी के लिए आप ये पैटर्न प्रिंट कर लीजिए, और ये आपका स्टार प्रिंट कराना है। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू कैसे मेरा वर्क कर रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज़ you can ping in chat box and ask the question. I will try to give the example and I will try to resolve your all query. So next move, let's move in the next topic. सो ये तो फॉर लूप का नेस्टेड लूप हो गया। अभी फोर इच लूप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लूप, आपको ये पता होना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा करते हैं, फिर इसमें एग्जांपल आपको समझाते हैं। बेसिकली फोर इच लूप इज यूज्ड टू इटरेट थ्रू एलिमेंट ऑफ एरे एंड कलेक्शन। और if you are job doing, you are doing job or you are professional वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सो आप कलेक्शन से मोस्टली यूज करते हैं, एरे कम यूज करते हैं। एरे हम इतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, but that's fine. You have to know sometimes because it's useful. You have to know about all the concept and all the syntax which we are following in the Java. So basically for each loop is used to iterate through element of array and collection, and array list और कलेक्शन इसमें यू कैन यूज, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, एंड इट इज नोन एज द एनहांस्ड फॉर लूप एज वेल। सो दिस इज द सिंटैक्स व्हिच आई हैव गिवन डेटा टाइप्स आइटम एंड एरे। जब आप कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, जो एरे मैंने लिखा है वो एक एरे है या फिर कलेक्शन ऑब्जेक्ट, जो भी आप बनाना चाहते हैं वो है। आइटम एक जस्ट ए वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और डेटा टाइप है ये, जैसे कि आप इंटीजर या फिर फ्लोट या फिर डबल कुछ भी यूज करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि मेरी जो क्लास का नाम है वो फॉर ईच रख दिया मैंने। यहाँ पे फॉर ईच मेरी क्लास का नाम है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं यूजिंग एरे। हम यहाँ पे क्लास का एक एग्जांपल लिखेंगे जो कि आपको कंसर्न करेगा कि आपका फॉर ईच लूप काम कैसे करता है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक इंटीजर क्रिएट किया, और इंटीजर का नेम मैंने, वेरिएबल का नेम दिया नाम, और एक एरे मैंने यहाँ पे बनाया जिसमें मैंने वैल्यू डिफाइन करी है। सपोज कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हैं जो आपका मन करता है, और एक मैंने नेगेटिव वैल्यू कुछ भी यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो अभी अब मैं फॉर ईच लूप लगाती। फॉर ईच लूप का सिंटेक्स क्या कहता है, सबसे पहले आपका डेटा टाइप आएगा, ये वेरिएबल जो आपने लिया है वो वेरिएबल आएगा, एंड दूसरा जिसमें आप वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं वो वेरिएबल आपने यहाँ पे दे दिया, और जिसमें आपका वेरिएबल स्टोर है वो।
तो इसमें ये काम कैसे करेगा, तो ये जो नम है वो किस में इंसर्ट हो जाएगा, आपका नम में। तो उसको प्रिंट कराएंगे तो लूप चलेगा, मतलब वो कब तक चलेगा, साइज आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। तो इसमें मेरा ये फायदा है कि एनहांस लूप है, मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल वैल्यू प्रिंट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये कोड आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी हैव यूज्ड द फॉर ईच लूप टू प्रिंट ईच एलिमेंट ऑफ द नंबर्स व्हिच आई हैव डिजाइन हियर। array one by one print करेगा, and the first station item will be 3 and the second item will be 9 and third आपका iteration में item क्या हो जाएगा 5 and fourth में आपका -5। तो ये आपका प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट रन कराया मैंने, तो आपका यहाँ पे देखिए ये प्रिंट हो गया। अगर मुझे अभी ये जो मैंने नंबर लिए मुझे इनका सम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है और सम ले लिया। अब एडिशन कर रहे हैं तो सम की वैल्यू डेफिनेटली आप 0 डिफाइन करेंगे। ये हमने आपको पहले सिखाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले कि मैं चाहती हूँ कि सम करने के बाद में सारी वैल्यू को एक साथ प्रिंट करें। तो यहाँ पे हम ना ये जो वैल्यू प्रिंट एफ में मैंने लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ से कट करके वैल्यू ऐड करेगा, लूप के बाहर प्रिंट कराऊंगा। तो उस केस में क्या करेगा कि जितना भी आपने वैल्यू डिफाइन किया है ऊपर, उन सब का सम ये यहाँ पे आपको दे देगा। लेकिन आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये जो नंबर है यहाँ पे, ये आपका इंटीजर टाइप का है, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा बिकॉज आपने इसको यहाँ पे डिफाइन किया है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर है आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, आई मीन इट्स नॉट मैंडेटरी टू बी रन आपका ये तो। लेकिन आप बट लूप में क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट है। ओके सॉरी, ये हमने फॉर लूप में डिफाइन किया है, तो फॉर लूप में इंटीजर मैंने नंबर इज इक्वल्स टू नम यूज किया है। तो हम यहाँ पे कैसे करने वाले हैं कि ये जो आपका सम है, हम सम वेरिएबल, लेकिन हम तो सम प्रिंट करा रहे हैं ना, हम नंबर प्रिंट नहीं करा रहे हैं, सॉरी माय बैड। तो वी आर गोइंग टू प्रिंट द सम आप यूज कर सकते हैं। अभी मैंने इसको रन कराया, आप रन कराएंगे तो मुझे इन सारी वैल्यू का सम प्रिंट कर देगा यहाँ पे 12। तो आप इसको कैट कर सकते हैं, कितना होगा 9 और 3 कितना होता है आपका 12, 12 प्लस 5 17 और माइनस 5 इज इक्वल टू 12। तो ये आपका सम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू इस तरीके से प्रिंट करानी है डबल कोर्स में मैसेज के साथ, तो सम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे परसेंटेज डी वगैरह का यूज़ नहीं होता, वो सी में यूज़ होता है। तो कन्फ्यूज मत होना इफ़ यू आर न्यू टू जावा और यू आर वॉचिंग बोथ द वीडियो साइड बाय साइड, सी एंड जावा। तो ये मेरा यहाँ पे सम पेरेंट हो गया यूजिंग द फॉर ईच लूप। तो हमने इसमें कैसे किया है कि मेरा पहला वेरिएबल कितना है 3, तो 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 3 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा, उसको वैल्यू कितनी मिलेगी 9, तो 9 जो 9 मिलेगी, तो जो आपका सम आया है 3 प्लस 9 वो प्रिंट करेगा वहाँ पे। फिर दूसरे एडिशन में जाएगा, उसको वैल्यू मिलेगी 5, तो जो आपका 3 प्लस 9 प्लस 5 था वो प्रिंट करेगा। इसी तरह से बाद में उसको -5 मिलेगा, तो जो 3 प्लस 9 प्लस 5 का सम होगा -5 हो जाएगा। बिकॉज प्लस माइनस जो सिंबल होता है वो क्या होता है आपका माइनस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर हम क्या करते हैं माइनस है और इसको माइनस और माइनस को हम प्लस करते हैं, माइनस और माइनस को हम प्लस करते हैं तो हमारा प्लस सिंबल होता है, और प्लस माइनस करते हैं तो अगर हम यहाँ पे करते हैं प्लस और माइनस का यूज़ करते हैं तो वो मेरा माइनस कहलाता है, राइट। ये तो पता ही होगा आपको, माइनस माइनस मेरा प्लस होता है, राइट। और प्लस माइनस भी मेरा माइनस होता है। ये मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, ये तो आपको पता ही होगा, तो मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। सो ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल से एक एग्जाम्पल प्रिंट कराया है जिसको कि हमने फॉर ईच लूप के थ्रू प्रिंट कराया है। ठीक है, तो ये मेरा एडवांस लूप होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपकी लाइन नंबर ऑफ कोड भी बच जाते हैं। अगर मैं इसको फॉर लूप से लिखने जाऊंगी तो मुझे इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, देन कंडीशन, देन आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंस्टेड ऑफ दैट आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस फॉर ईच लूप एंड जस्ट यू कैन प्रिंट योर कोड इन four line example it will be okay. So it will helpful, and basically more important in industry when we are going to write anything, so we use this loop only. Okay, so next move on to the next question. So we are moving into the next most important question. So आपका बेसिक्स खत्म हो गया है, जो जावा का मेन है वहाँ से अभी स्टार्ट होता है जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट। सो जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट यूज द रैपर क्लासेस कॉन्सेप्ट, एंड वाई इट इज नॉट प्योर बिकॉज इट यूज द प्रिमिटिव. So some people used to say like Java is a pure, or some
people used to say Java is non-pure object-oriented language. But after Java 7, we are using the wrapper classes here. So Java is a pure object-oriented programming language because you can convert your primitive into non-primitive, non-primitive to your primitive as well. So that those concepts I have already covered in one basic video which I have uploaded already. So you can go and check that one. So here we will be discussing about the OOPS concept first. First we will be discussing about the object, class, methods. Then we are going to cover the example on based on that. So if you are a student, you can go through the notes. That will be helpful for you. Java is an object-oriented programming language. The core concept of the object-oriented approach is to break complex problem into the smaller objects. So the main concept or the core concept of object-oriented to approaching all the OOPS concept, because it allow you to solve your problem और break your complex problem into a smaller objects. So पहले हम object की बात करते हैं. What is an object? An object is an entity that has a state and behavior, and object can be anything. You and me is also an object. Pen is also an object because pen behavior is writing. Okay. And स्टेट में आप कलर किस टाइप का है ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे आई हैव गिवन वन एग्जांपल. ए बाईसाइकिल इज एन ऑब्जेक्ट. इट हैज स्टेट्स लाइक either first gear, etc, and behaviors, braking, accelerator, and all these things it's having. So basically you have to remember those few points. So that question is very important. What is a class and object, and what is the difference between class and object? Sometimes it used to what is reference as well. Okay. You have to be I have mentioned few notes that also be remember you should know about that. An object is called an instance of a class because I told you whenever you are declaring any instance variable that can be called by object only. That's why we used to call is an instance of a class. And first we will check about the Java classes. What is the class? Class is a blueprint for the object. Okay. So and now I will give you one example. If you are sitting in a room, okay, so class is a collection of object. Blueprint की जगह आप ये भी लिख सकते हैं class is a collection of object. मतलब मेरे पास एक रूम में मल्टीपल चीजें, जो मल्टीपल चीजें है वो आपकी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये रूम आपका क्लास है. तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आप ये भी डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं. तो बिफोर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू डिफाइन ए क्लास, एंड उसके अंदर में हम फील्ड्स, मेथड, वेरिएबल, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं. लेट्स मूव इनटू द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट. ओके. Here we are using this class. Okay, so I'm going to write an example here. मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी. क्लास के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हम क्लास तो यूज़ करते ही हैं. अगर मैंने आपको ये पूरा कोड समझाया हुआ है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है क्योंकि 3 तरह के मॉडिफायर्स होते हैं. वंस वी विल बी कमिंग इनटू द पर्टिकुलर टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज 3-4 मॉडिफायर्स: प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड. ये एक पर्टिकुलर एक लेक्चर रहेगा. तो अभी के लिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड. पैकेज भी कैसे क्रिएट करते हैं मैनुअली, वो सब भी हम आपको बताने वाले हैं. क्लास एक कीवर्ड है. यहाँ पर क्लास का नेम मैंने फर्स्ट एग्जांपल यूज किया. मेरा मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग एरे args. Because of command line we are using this string args that you already know about it because I have prepared one separate video and upload it. You can go and check. Okay, so now we are moving into the example. So I will do one thing. I will show you where you need the object. Okay, here I'm going to create one variable. Let's see, I'm using any string name. So this is one variable, and here I'm using salary. Anything you can write, or number, something. So here inside this main method I want to print the value of name and salary. Sorry, I want to print the value of name and salary. मैंने यहाँ पे name लिखा है इसका इंटेलिजेंस एक्सचेंज, और सैलरी समथिंग समथिंग हम दे सकते हैं. इंटीजर है तो देखो डबल कोट्स में आपको देने की ज़रूरत नहीं है. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है बिकॉज आपको स्ट्रिंग में डबल कोट्स यूज़ होते हैं, इंटीजर में डबल कोट्स यूज़ नहीं होते हैं. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट कराना है. तो आप कैसे प्रिंट कराएंगे,
आप इसको डायरेक्टली प्रिंट नहीं करा सकते बिकॉज ये नॉन स्टैटिक है और ये मेथड कैसे है आपका स्टैटिक. सो यू कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक डायरेक्टली इनटू द स्टैटिक मेथड. सो यू नीड अ ऑब्जेक्ट. If I will create a static integer name, then you can directly call by name, a class name as well, or directly you can without object also you can create. So here if I will be printing this, so I need to create a object. Object कैसे create करते हैं, ये आपका क्लास का नेम आ जाएगा यहाँ पे. और ये जो ओबीजे है, मैंने ओबीजे दिया रेफरेंस के लिए, न्यू एज अ मेमोरी लोकेशन के लिए यूज होता है. तो ये आपका दिस इज अ वे क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. सो क्रिएट ऑब्जेक्ट. नाउ आई वांट टू प्रिंट दिस मेथड. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है. और ओबीजे डॉट नेम आप इसको ऐसे लिखने वाले हैं. अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो डायरेक्टली नेम प्रिंट नहीं होगा. मैं आपको ओबी करके दिखा देते हैं. तो ओबीजे, इसके अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे ओबीजे डॉट सैलरी, ये आपका वेरिएबल है. वाई भी आएगा, यहाँ पे वाई नहीं है, मिस हो गया है, तो यहाँ पे अभी ये एरर नहीं दे रहा है. ओके. सो ये मैंने प्रिंट कराया है. वापस इसको रन कराते हैं. रन जावा एप्लीकेशन. तो देखा आपने प्रिंट हो गया. लेकिन इफ आई विल नॉट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट directly, I want to print this and I will execute. What will happen? यहीं पे Eclipse ID है तो एरर दे देता है. नोटपैड में आपको कंपाइल करके पता चलता है. क्या बोल रहा है आपको ये? जावा अनरिजोल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड नेम सैलरी. दैट इज द रीजन. नॉन स्टैटिक को आप स्टैटिक में डायरेक्टली कॉल नहीं करा सकते. इफ यू विल बी कॉलिंग, सो वो आपको बोलेगा कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते. यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट. सो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ये आपका आउटपुट आ गया. अभी हम बात करते हैं मेथड्स की. नेट टॉपिक आ जाता है आपका मेथड. अभी ये बार बार मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे बार बार लाइन लिखनी पड़ेगी, दोनों लाइन लिखनी पड़ेगी. तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक मेथड बनाया. मेथड का नाम मैंने वॉइड डिस्प्ले दे दिया. मैंने स्टैटिक मेथड नहीं बनाया. अगेन अगर मैं स्टैटिक बनाऊंगी तो मैं स्टैटिक डिफाइन कर सकती हूँ इसमें. लेकिन मैंने क्या करा, इन दोनों लाइन को उठाया यहाँ से. ये नॉन पैरामीटराइज मेथड है, पैरामीटर इसमें नहीं है. और ये नॉन रटने वाले मेथड है क्योंकि मैंने कोई डाटा का यूज नहीं किया. अभी मुझे क्या यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट है ये. ओके, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, ये मेरा मेथड मैंने कॉल करा लिया. अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या बोल रहा है मुझे, ऑब्जेक्ट. मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट हटाना ही पड़ेगा आपको, सॉरी. अभी इसको रन कराएंगे, ये रन हो जाएगा. अभी हमने कुछ नहीं करा है, वो चीज़ें मेथड में डिफाइन कर दी. लेकिन जब आप कोई फंक्शन या मेथड डिफाइन करते हो तो आपको सबसे पहले रिटर्न टाइप देना होता है. दूसरा, ये मेथड का नेम है, कुछ भी हो सकता है. और पैरेंथेसिस इज अ मस्ट थिंग टू बी अप्लाई इन एनी फंक्शन. दिस इज द पहचान होता है ये इसका, ठीक है ना. सो ये आपका आइडेंटिटी है आपकी मेथड्स की. और अगर आप इंटीजर लगाएंगे तो आपको रिटर्नेबल लगाना पड़ेगा. पहले रिटर्न कराना पड़ेगा यहाँ पे कुछ भी, then you have to print. Okay, so this is the basic example of the class, object and method which I have covered in this topic. So let's move into the next topic. एक्सेस मॉडिफायर के बारे में मैंने आपको बताया है और ये हम सेपरेट टॉपिक में कवर करने वाले हैं. जो भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का, और ये आपका क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हैं, इसके हम अलग टॉपिक पे बात करेंगे. ओके. सो यहाँ पे मैंने आपको मेथड के बारे में बता दिया. अभी अगर आपको डेफिनेशन देखना है तो आई हैव प्रिपेयर्ड इन नोट्स फॉर यू, तो यू कैन चेक हियर. method is a block of code that perform a specific task which I have written in your example. I have created one method, there I have printed two line and that I'm calling that particular line. So basically it is a block of code that performs a specific task. For example, suppose you need to create a program to create a circle and color it. You can create two methods to solve this problem. One method to draw the circle. Second, you have to create a one method to color the circle. Dividing a complex problem into smaller chunks or a smaller part make your program easy to understand and reusable. That's why you are creating two different methods. Okay, so this is the program which I have written in last example. You can see in Eclipse video. So now I will tell you there are two types of method we used in Java. One, user defined method.
सेकेंड, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड। लाइब्रेरी मेथड लाइक मैथ फंक्शन आप यूज करते हो, और फिर यूजर डिफाइंड मेथड विच यू आर क्रिएटिंग, लाइक आई हैव क्रिएटेड द डिस्प्ले मेथड। सो एंड उसमें भी आपके दो टाइप के मेथड होते हैं, एक रिटर्न टाइप होते हैं, एक नॉन रिटनेबल होता है। नॉन रिटनेबल का मतलब होता है जहाँ पे आपने वर्ड यूज करा है, और रिटनेबल का मतलब होता है कि आपने कोई भी डेटा टाइप वहाँ पे यूज किया है, तो जिस टाइप का आप डेटा टाइप यूज करते हो उस टाइप की आपको वैल्यू को रिटर्न करना पड़ता है। सो ये सारे इसमें आ जाते हैं। कॉल कैसे कराते हैं वो भी डायरेक्टली मेथड का नाम लगेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, जो कि आपने पहले किया हुआ। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं हम, और वो कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। मैंने एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें मुझे 2 नंबर का सम कराना है। अब वो कैसे कराएंगे, यूजिंग अ मेथड मुझे एक कॉन्सेप्ट लिखना है। यहाँ पे जाएंगे, एक नया क्लास हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये मैंने रिटनेबल फंक्शन लिया है। किस टाइप का मैंने फंक्शन लिया, रिटनेबल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा टाइप पास कराया है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सम को रिटर्न करा दिया। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो एरर देता रहेगा। अभी मुझे क्या करना है, मैंने ये वाला मेथड लिया है, यहाँ पे मैंने नंबर लिया है, और मैंने इसके वैल्यू को असाइन कर दिया, सपोज 90। मैंने इसकी वैल्यू num2 लिया है, और num2 की वैल्यू को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। अभी मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा पहले मेथड को कॉल कराने के लिए, क्योंकि नॉन स्टैटिक है। कैसे क्रिएट करते हैं, obj is equals to new use for memory location that I will explain, already explain I think in a topic। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज वो रिटनेबल है। आप डायरेक्टली से कॉल नहीं करेंगे, आप ऐसे कॉल करेंगे, रिटर्न कराएंगे तो उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। obj डॉट व्हाट इज योर मेथड नंबर, ऐड नंबर, और यहाँ पे आपको 2 वैल्यू पास करानी, num1 एंड num2। नाउ मेरा जो रिजल्ट है वो मैंने इसको कॉल कराया, मेरे रिजल्ट के अंदर सेव हो गया है। आप यहाँ पे जाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे, और यहाँ पे अगर आपको मैसेज भी प्रिंट कराना है तो सम इज इक्वल्स टू प्लस सम आप कर देंगे, और इसको रन कराएंगे। Oh my god, it's giving some error. Let me check what is the error, because the variable name is result. I am using here sum. Okay, right click, run as Java application, sum is equals to 100. So this is the example of returnable function or returnable method. Okay, likewise you can use multiple methods here, and different programs you can use it. The standard library methods, I will just explain what is it. Like the standard library method, built-in methods which used in Java, that are basically that are readable, and it's all are available, and you directly can use in your program. These standard libraries comes along with the Java classes library, which called JCL also in a Java file. So we are having .jar, .var. So here in Core Java we are having the those file .jar star file, and with JVM and JRE. For example, printf function or println function, or print is a method that is available in the java.io print stream, and the print method print the string inside the quotation mark which you have used. So here if I'm talking about the math predefined function, so we are having the square root function, math function, those written square root of numbers. So this is the predefined function which we use. So that those example I will cover in all the collections part. So here just I'm going to write one, I will be using one predefined method, and I'm just trying to show you that particular method. इसका मैंने एग्जांपल क्लास का नेम स्टैंडर्ड लिव दे दिया है। अभी आप यहाँ पे जाएंगे, और मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू प्रिंट वन लाइन यूजिंग दिस प्रीडिफाइंड मेथड, एंड दिस मेथड में मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। मैं कोई फॉर्मूला कोई ऐसे नहीं लिखने वाली हूँ अलग से, ये मेरा प्रीडिफाइंड है मैथ डॉट
और यहाँ पे आप डिजिट डॉट करेंगे तो बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे। आप स्क्वायर रूट कर दीजिए, किसका निकालना है 4 का। तभी आपने देखा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्क्वायर रूट इस 2। तो ऐसे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है जिसको आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बोलते हैं। Now basically the question is coming, why, what is the advantage of methods? First, reusability, like you have seen. So that is a big advantage of method, the code reusability. So this question can you ask in your Viva as well, and sometimes in your written exam. Why we are using method? What is the advantage of using method? So the main advantage is code reusability. To use methods, we can write a method once and use it multiple times. We do not have to rewrite the entire code each time like you do. Okay, I need to print 2 lines 20 times, so directly you will call your method, not you are going to print your printf line multiple time, not printf, sorry, system.out.println line. Okay, so think of it as write once and reuse multiple times. So in short, method is write once and reuse multiple times. Okay, so this is mainly used for the code reusability. Okay, suppose any example you can take. I will print one example. I will be going to use, I'm going to print a multiplication of the number which I will be using here. So I will give one example for this not project class. I will be creating one class here. Code reusability. Anything you can give the class name, कुछ भी class name आप लोगों को समझ में, that's why I'm giving this class name. So I hope सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा. ओके, सो यहाँ पे हम मेथड्स क्रिएट करेंगे पहले. सपोज आई एम यूजिंग दिस प्राइवेट मेथड, यू कैन यूज एनी मेथड बट दिस इज द स्टैटिक इंटीजर आई एम यूजिंग. एंड मेथड का नेम मैंने यहाँ पे स्क्वायर दे दिया है बिकॉज मुझे स्क्वायर ही निकालना है, राइट. तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ कर लिया है जिसको मैंने ए नाम दिया है. एक्स वाई जेड कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं. ये मेरे रिटर्न टाइप है इंटीजर, तो मुझे ये जो वैल्यू है वो रिटर्न करानी पड़ेगी. नहीं रिटर्न कराएंगे तो आपको एरर आ जाएगा, या तो फिर आपको नॉन रिटर्नेबल फंक्शन बनाना पड़ेगा. अभी मुझे फॉर लूप लिखना है और i = 1 से लेके मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितने भी वैल्यू 10 तक आएंगे उन सब का मुझे स्क्वायर रूट आना चाहिए, उन सब का मुझे स्क्वायर प्रिंट करना है, नॉट स्क्वायर रूट. ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है. मैंने एक वेरिएबल लिया, आप ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल, मैं साथ के साथ डिफाइन कर दें यहाँ पे. और मेरा जो मेथड है ये गेट स्क्वायर, इस मेथड को मैंने कॉल कराया और इस मेथड को मैंने यहाँ पे आई पास कर दिया. ओके, हाँ, बट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये मेथड क्या बोल रहा है आपको, कि ये जो मेथड है आपका गेट स्क्वायर, ये आपका क्लास के अंदर है और यहाँ पे ये आप यूज़ नहीं कर सकते हो. रीज़न इज आपने इसको प्राइवेट बना दिया है, इसको पब्लिक लिख लीजिए आप, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है ना. और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया है इसको, और यहाँ पे मैसेज देना है तो आप लिख लीजिए स्क्वायर ऑफ. अगर आप चाहते कि वो नंबर भी प्रिंट हो तो क्या कोऑर्डिनेशन के लिए ये प्रिंट करते हैं, एंड देन आई प्लस ये जैसे डिस्प्ले हाउ यू वांट टू डिस्प्ले योर कोड. ओके, नथिंग एल्स. यहाँ पे आपको गैप देना है तो गैप दे सकते हैं, और एरो का साइन लगाना है वो लगा सकते हैं. जस्ट अ वे टू प्रिंट योर कोड. ओके, नथिंग. सिंपल भी आप रिजल्ट पास करेंगे तभी वो प्रिंट करेगा. इसको रन कराएंगे, जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे 0 से लेके लेस देन लगाया है मैंने, इसलिए 10 नहीं आया है. ये देखो सबके स्क्वायर स्क्वायर आ गया. अगर यहाँ पे भी आपको चाहिए ना ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप चाहिए तो ये भी आप दे सकते हैं, और यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं. इस बार वो 10 का भी निकाल के देगा आपको. राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए. सो इन सब का स्क्वायर इसने निकाल के दे दिया, तो मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर हो गया. अब नेक्स्ट हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन सारे उस कॉन्सेप्ट में, मेथड ओवरलोडिंग. बेसिकली बहुत सारे होते हैं, तो मेथड ओवरलोडिंग होते हैं, ओवरराइडिंग होते हैं, एनकैप्सुलेशन होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होता है. बट हम 1 बाय 1 पढ़ाई करेंगे पहले. तो ये मेरे उप कॉन्सेप्ट है. हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट चेक कर लिया है और मेथड्स का चेक कर लिया है. क्लास एंड ऑब्जेक्ट और मेथड्स, ये 3 टॉपिक मैंने कवर करे हैं और ये कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग.
ओके, सो मेथड ओवरलोडिंग मैंने यहाँ पे देखो ये सब लाइब्रेरी लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेथड? सो बिकॉज ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी, द मीनिंग ऑफ राइट वंस एंड यूज मल्टीपल टाइम्स. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज जावा मेथड ओवरलोडिंग. बेसिकली in Java, if you are having two different method by same name but different parameters in a same class, so that is overloading. Means in Java, two or more methods may have the same name if they differ in a parameters. Like I want to do addition for two number, multiplication of two number, and the subtraction of two number. So I will be writing the method name subtraction, division, something, but मेरे पास parameters will be डिफरेंट भी हो सकते हैं. इसमें मैं डेसिमल यूज कर रही हूँ, किसी में फ्लोट यूज कर रही हूँ. सो लाइक दैट आई हैव गिवन. सो ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट में अलग रहता है. ओवरलोडिंग में क्या रहता है कि आपका जो क्लास जो नेम है, जो क्लास का नेम है वो सेम रहेगा, और जो मेथड में आप यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट. आप सेम यहाँ पे देख रहे हैं मेथड का जो नेम है वो सेम रहेगा और जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट रहेंगे. So basically in Java, as I told you, so these method are called overloaded method, which I have shown here in example, and this feature is called as method overloading. So basically the return type of the above method are not the same, that can be different. Some return type is float, some is double, as I explained you. So that you have to be remember, the return types of the above method are not the same. This is because method overloading is not associated with return type. So it is not, doesn't matter which return type is your method, the main concept is your parameter would not be same and syntax. So overloaded method may have the same or different return type, but they must differ in parameters. But parameter differ होना चाहिए, बाकी आपका different है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. So that is the main concept. Suppose you have to perform the addition of given number, but 3 can be any number of arguments. Let's say either 2 or 3 argument or anything. Okay. So in order to accomplish the task, you can create two methods, like sum to num. There you are using integer value, and sum 3 you are using three variables, sum 1 2 3, like num1 num2 num3, and those are integer. So 4 to 3 parameters respectively, and first one was the 2 parameter you are sending. Okay. So the better way to accomplish this task by overloading method. So how it will be using that I'm going to cover it by the example. So here I'm going to write a one program. So I want to display the sum of two number and the three number. So how you will passing that parameter? So that is called the overloading. Let's see the example. Okay, so I'm going to create a method. If you want to create a static method, you can use a static, otherwise you can create the non-static method. So I'm going to create a non-static method. Okay. मैंने ये जो नम यूज़ किया है ये नॉन रिटनेबल है. ओके. मतलब इसमें रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक और मेथड मैंने लिखा है. ये टाइप भी डिफरेंट हो सकते हैं, इसका जरूर नहीं कि टाइप इसका सेम रहे. मैंने क्या कर दिया, इसका एक में 2 यूज़ कर लिए हैं और एक में मैंने 3 यूज़ कर लिए. और इंटीजर सम वेरिएबल मैंने यूज़ किया यहाँ पे a प्लस b प्लस c, एंड द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. यहाँ पे मैसेज में लिख दिया सम ऑफ 3 नंबर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सम आ जाएगा. नाउ मेथड का नाम सेम है. ओके. सो कंपाइलर को भी कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट, कि वो कौन से मेथड को कॉल करे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे
इसीलिए यहाँ पे मैंने ये डिफाइन करा है। पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे न्यू लिखना पड़ेगा, मैंडेटरी है। न्यू इज अ कीवर्ड दैट इज यूज फॉर योर मेमोरी एलोकेशन। सो ऑब्जेक्ट डॉट पहले वाले डिस्प्ले को कॉल करेंगे, और अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू पास कराने वाले हैं तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये आपका पहले वाला मेथड कॉल हो रहा है, बिकॉज इसमें 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं। नेक्स्ट में आप डिस्प्ले में 3 पैरामीटर पास कराएंगे। मैंने यहाँ पे पास करा दिया है आपका 100, 800 एंड 100, एनीथिंग यू कैन पास कर सकते। राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे। ये नॉन रिटनेबल है इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ करा, तो ये आपका सम प्रिंट हो गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, यू हैव टू बी रिमेंबर द फ्यू थिंग्स, so then we will be moving to the next topic, constructor. So that I'm going to tell you, you have to remember few things, like 2 or more method can have the same name inside the same class if they accept different arguments. So that is the feature we call as method overloading. I have written in notes as well, you can read. And you can achieve the method overloading by changing the number of arguments first, like I did. Second, by changing the data type of arguments also. Like suppose I have created one more example here. I'm going to create void display ही मैंने यूज़ कर लिया है, और यहाँ पे मैंने डबल यूज़ करा है। डबल में मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा है a एंड डबल में b लिख दिया है, और मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन करा दिया है यहाँ पे। तो ये भी तरीका है आपका। ओके, अभी यहाँ पे आप इसे कॉल करा लीजिए। मैंने इसकी वैल्यू पास करा दी 10.5। ओके, सो यू कैन अचीव both the तरीके से। पहला आपका चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, सेकेंड इज चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। सो इट इज नॉट मेथड ओवरलोडिंग इफ वी ओनली चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड, सो देयर मस्ट बी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। Okay, so these important things you need to be remember, then that would be fine. So next we are going to move in a next topic, that is Java constructor. So I'm going to open a notepad here and going to write about the constructor. So this is very important. It's just like a method, but it's not a method. Okay, so next topic is constructor in Java. So basically it is similar like a method, as I told you. So you can write a definition here. A constructor in Java is a similar to a method that is invoked when an object of the class is created. Like whenever you are creating a object of a class, by default constructor is called that is responsible to assign default value for the instance variable. So unlike Java method, a constructor has the same name. You need to remember these things. नोट में लिख देते हैं यहाँ पे, हम आपको याद रहेगा। ओके, नोट में हम लिखते हैं यहाँ पे आपको, लाइक अनलाइक जावा मेथड, ये आपको याद रखना है। ए कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज दैट, क्लास नेम का जो नेम होता है वही आपको देना होता है। आप कंस्ट्रक्टर का नेम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो इंटरनली कॉल होता है। जो भी क्लास का नेम रहेगा वो आपका कंस्ट्रक्टर का नेम रहेगा, यानी रिटर्न टाइप
मेथड में ये है कि आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। मेथड का नेम भी आप क्लास का नेम दे सकते हैं, बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर इट्स मस्ट, एक कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास एंड डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। बट जावा में क्या होता है, मेथड में अगर हम बात करें तो रिटर्न टाइप होता है, वहाँ पे इंटीजर वगैरह यूज करते हैं, यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप यूज नहीं करना होता है। मैं आपको उसका सिंटेक्स बता देती हूँ। सिंटेक्स आपने सपोज यहाँ पे क्लास डिफाइन किया, क्लास टेस्ट, बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं भी रहते ना तो कंस्ट्रक्टर तब भी असाइन होता है, इंटरनली नहीं होगा जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्टर। अगर आप नहीं यूज करते तो इंटरनली आपका ये कॉल होता है, और ये करता क्या है ये भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने टेस्ट मेथड बनाया है ये आपका कंस्ट्रक्टर है, और ये कंस्ट्रक्टर बॉडी है आपकी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर टेस्ट इज अ कंस्ट्रक्टर है दैट इज हैज द सेम नेम एज यू हैव डिफाइंड इन अ क्लास नेम एंड इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। Okay, so that you need to remember about this. Okay, let's move one small example. I will going to create here one small example. मेरी क्लास का नाम क्या है, कॉन्स्ट है। मैंने एक क्लास का नेम यूज़ करा है, जो भी क्लास का नेम है वही क्लास का नेम आपको यहाँ पे होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है दिस इज एक मैसेज, दिस इज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर मैंने सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ करा स्ट्रिंग नेम, और मुझे ये इस कंस्ट्रक्टर के अंदर साथ में भी प्रिंट कराना है, और नेम मैंने अपने प्रोग्राम का नेम लिख दिया इंटेलिजेंस एक्सचेंज, मैंने ये दे दिया यहाँ पे, और मुझे ये प्रिंट कराना है। तो जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मैंने यही बताया आपको डेफिनेशन में, मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है तो बाय डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, आपको इसे कॉल कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और आपको प्रिंट कराना है नेम, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैंने कहा नेम इज इक्वल्स टू प्लस ऑब्जेक्ट डॉट नेम। देखो मैंने डॉट ऐसे डॉट कॉन्स्टेंट ऐसे नहीं लिखवाया कि जैसे आप ऑब्जेक्ट का मेथड को कॉल कराते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे कॉल कराया, मेथड में डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पे अपने मेथड को कॉल कराया, ये देखो ये रिटर्नेबल है मेथड, और रेडी में देखेंगे तो ये आपने यहाँ पे डिस्प्ले से मेथड को कॉल कराया, तो इसमें आपको कोई कराने की जरूरत नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, और ये आपको प्रिंट हो गया। Okay, so this is the example of constructor. So I hope आपको समझ में आया होगा ये सेशन, and if you are having any question so kindly mark in a chat window so I can help you to resolve those questions. So next topic is types of constructor. So basically there are three types of constructor we use in Java. One is non-argument constructor, second is parameterized constructor, and third is a default constructor that we will cover in the next topic. I hope आपको मेरा सेशन समझ में आया है. If you are having any doubt, kindly ask in your comment window. And if you need any notes, you can also print in a send your message in chat window. So I will try to send you the PPT link. Okay. And thank you so much for watching my Java series. And if you really like the way I teach you, kindly subscribe my channel. Thank you so much.